Hi, welcome to our mains answer writing day program day 9. Today we will be discussing about civil service reforms and public centric governance. आज का क्वेश्चन है हमारा, मिशन कर्मयोगी intends to drive people centric governance and prepare the civil servants for future by reforming it. Analyze the factors and forces behind the evolving paradigm and role of mission कर्मयोगी in reforming the bureaucracy in order to fulfill the new aspirations. इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं. पहला पार्ट इज ट्राइंग टू एनालाइज और डिस्कस what is the new paradigm in the shape of governance, that is people centric governance. What does people centric governance entail or people centric governance mean, and how this changing paradigm in the field of governance, how governance में जो भी changes आ रहे हैं, नई needs, नए emerging paradigm आ रहे हैं governance में, how do civil service is related to it, how does civil service need to be upgraded, and what is the role of mission Karmyogi in upgrading civil service and providing this new form of governance. This is our question for today. So let's begin our answer. Our answer will be divided in three parts, that is intro, body and conclusion. Intro mein we will discuss the first part of the question, that is what does people centric governance mean. Then body part mein we will discuss कि what are the forces, that we will discuss about the first part of our question, that is what are the factors and forces which are basically promoting or pushing up the new form of governance, that is people centric governance. And in the second part of body we will discuss the second half of our question, that is what is the role of mission Karmyogi in preparing the civil services in achieving this new form of governance. So this will be the next part of our body, our second part of our body, and lastly we will write about the conclusion on how to end this form of answer, which relates to civil service reforms and new forms of governance. So let's start our answer. Intro में we will discuss about the people centric governance. What is people centric governance? हमारे यहाँ दो टाइप के मॉडल्स जो हैं आज तक फॉलो हुए हैं गवर्नेंस में, एक जो ओल्ड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, एक जो न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है. द ओल्ड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वाज द गवर्नमेंट सेंट्रिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, जिसके अंडर में पीपल हैड टू अप्रोच विद द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट फॉर द वेलफेयर बेनिफिट दे आर मेंट फॉर. उनको जो भी वेलफेयर बेनिफिट मिलना चाहिए उसकी रिक्वेस्ट लेके वो गवर्नमेंट के पास जाते थे, एंड गवर्नमेंट यूज्ड टू see whether they are eligible or not, and they used to provide those services. But people centric governance is a step beyond it. People centric governance has now become a national imperative. एक नीड बन गई है आज की प्रेजेंट गवर्नेंस मॉडल की इन ऑर्डर टू बिकम अ बेटर सोसाइटी. पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस में ये जो प्रोसेस थी ओल्ड वाली, दिस वाज अ कम्बरसम प्रोसेस. आप एक एप्लीकेशन लेके गवर्नमेंट के पास जाते थे कि हमको ये बेनिफिट दे दीजिए प्लीज़. गवर्नमेंट उस एप्लीकेशन को बहुत बार सोचती थी. ब्यूरोक्रेट्स जो होते थे, एक मिडिल लेयर होती थी बहुत लंबी ऑफिशियल्स की, जो उसको एप्लीकेशन को देखती थी. कई टाइप के करप्शन होते थे, वो एप्लीकेशन कई जगह घूमती थी, एंड फाइनली फिर अगर आपकी एप्लीकेशन बाय गुड गॉड्स ग्रेस, बाय गुड लक वो एंड पॉइंट तक पहुंच गई, देन ओनली यू वर एलिजिबल फॉर गेटिंग बेनिफिट. This was a cumbersome process, a corrupt process, full of bureaucratic processes, और ये लोगों को encourage करती थी कि वो गवर्नमेंट के पास जाएं अपनी डिमांड को लेके, अपनी रिक्वेस्ट को लेके. Whereas people centric governance is opposite to this. People centric governance में people do not go to government, rather than that government go to people. Government, state reach up to the people in order to provide them benefit, and people do not request for their services, people claim their services. People claim कि this is our right, this is not our request, this is our right, this is what we are entitled for. ये हमारा हक है कि आप हमको ये बेनिफिट या ये सर्विस दें, being a state जो हमसे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में है. And thus government was obligated to provide those service to the people. This was used to be known as, गवर्नमेंट खुद जाके खुद ऐसे टूल्स यूज़ करती है, खुद ऐसी प्रोसेस डेवलप करती है जिसमें लोगों को एक ब्यूरोक्रेटिक लेयर से पास ना होना पड़े अपनी एक बेनिफिट को लेने के लिए. रेदर देन दैट गवर्नमेंट खुद उस एप्लीकेशन को जल्दी जल्दी अप्रूव करे, गवर्नमेंट खुद
एलिजिबल को आइडेंटिफाई करे कि ये पर्सन, इसकी पर मंथली इनकम ये है, ये पॉवर्टी लाइन के नीचे है, ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, एंड इसको ये बेनिफिट मिलना चाहिए, और उसके अकाउंट में वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र करती है विदाउट अप्लाइंग फॉर दोज बेनिफिट बाय द सिटीजन. So this is known as people-centric governance, which is the need of the day, which is the change of the day, which has been the governance form of the day. So what are the forces which shape the people-centric governance? Which factors are responsible जो आज की डेट में people-centric governance के आइडिया को लोगों में प्रमोट कर रहे हैं और गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे हैं टू अडॉप्ट दिस मॉडल? फर्स्ट इज इंटरकनेक्टेडनेस थ्रू ICT. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद लोग जो हैं ग्लोबली इंटरकनेक्ट हो गए हैं. यूथ जो हैं उनकी एस्पिरेशंस एंड डिज़ायर्स बढ़ गई हैं. पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज एंड पीपल, developed democratic countries, and the mechanism by which people ask their rights and entitlements to their government in developed countries, and they are now realizing through this means of information and communication technology that they can also claim the similar rights to the government. This is the first factor which is forcing for government to adopt people-centric governance. The second tool या factor which is responsible is public participation. जैसे जैसे सिटीजनरी इन्फॉर्म्ड होती जा रही है वैसे ही वैसे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योर होता जा रहा है. पॉलिटिकल पार्टीज आज की डेट में दे डू नॉट मेक एनी ब्लाइंड फोल्डेड प्रॉमिस. दे रिकॉग्नाइज, दे डिस्कस और दे communicate with the people on various debate platform, through news media, through social media. They interact with people, they understand the need of the people, and based on that need they promise to the people कि हम आपको ये डिलीवर करेंगे. एंड अगर वो डिलीवर नहीं होता है कैंपेन प्रॉमिस के अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल पार्टीज़ पावर में आने के बाद, गवर्नमेंट बनने के बाद वो चीज़ डिलीवर नहीं करती है, तो देन दैट केस पीपल जो हैं अपना सपोर्ट जो है वापस लेने लगते हैं. So this public form of public participation is forcing the government to take opinion of the public in making any kind of policies and making any kind of promises so that they do not get falsified at the later stage. उन गलत साबित ना हो कि हमने ये प्रॉमिस किया था और हमने डिलीवर नहीं किया. The Prime Minister has एप्टली कॉल्ड इस, प्राइम मिनिस्टर ने इस पब्लिक पार्टिसिपेशन के फॉर्म को जन भागीदारी बोला था, जिसमें पीपल पार्टिसिपेट एंड हेल्प गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज विच इज़ बेस्ड ऑन देयर नीड एंड फुलफिलमेंट ऑफ दोज नीड. देन द थर्ड फैक्टर इज़ द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. नई टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली इट हेल्प्स टू बाईपास द ऑफिशियल लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी. गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली ट्रांसफर मनी into the account of the public, into the account of a person who has been identified as beneficiary. So इस person को multiple जो layers हैं official डम की, उन layers के through pass नहीं होना पड़ेगा in order to get the benefit of the government. So this use of the technology, new technology, is the third factor which is promoting the people-centric governance. So these factors basically herald our state into a new form. हमारा स्टेट अब एक नए फॉर्म में डेवलप हो रहा है. जो प्रीवियसली प्रोविजनल स्टेट था जिसका काम था सिर्फ सर्विस लोगों को देना, अब हो गया है वो पार्टनरशिप स्टेट, जिसमें स्टेट और पब्लिक के बीच में वन वे कम्युनिकेशन नहीं चलता या वन वे प्रोसेस नहीं चलती है. पब्लिक से स्टेट टेक इनपुट एंड सपोर्ट बोथ, इनपुट इन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन, सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर, NGOs, वॉलंटियर ग्रुप्स, इनका कोलेबोरेशन करके in providing service delivery, and people provide their opinion, state provides service in collaboration with private sector, civil society and volunteer groups. So this has become state has become from a provisional state to a partnership state, जहाँ पे state public और civil society organizations और public private sector के साथ participate करता है, partner करता है in order to provide the maximum efficient services in form of maximum efficiency. So this was about public centric governance. इसको हमने डिस्कस कर लिया. This was the first part of our question. Let's move on to our second part of question, that is civil service and mission कर्मयोगी. We know from the time of Kautilya Arthashastra that civil service is the backbone of any public service. Civil service is the backbone of any public service. So अगर ये जो टाइम्स चेंज हो रहे हैं, ये जो नीड चेंज हो रही हैं हमारी जो गवर्नेंस की, नए फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को डिलीवर करने के लिए, सो वी नीड टू चेक टू अपग्रेड आवर बैकबोन ऑल्सो. हमको सिविल सर्विस को भी अपने इस तरह से रेडी करना होगा कि आने वाले टाइम में जो पब्लिक सेंट्रिक गवर्नेंस है वो सिविल सर्वेंट प्रोवाइड करा पाएँ.
ये सिविल सर्वेंट को अपग्रेड करने की के लिए जो एक प्रोग्राम बनाया गया है, दैट इज़ मिशन कर्मयोगी। इसका ऑफिशियल नेम, जो पेपर नेम है, दैट इज़ नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग। ये इंडियन ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करता है और सिविल सर्वेंट को प्रिपेयर करता है फॉर द फ्यूचर। इसका एम है कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म करना फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग apparatus एट इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोसेस लेवल। मतलब सिविल सर्वेंट को इंडिविजुअल को भी रिफॉर्म करना है, एज एन इंडिविजुअल रिफॉर्म करना है, कैसे वो अभी हम देखेंगे। इंस्टीट्यूशनल जो ब्यूरोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन है उसको ओवरऑल भी रिफॉर्म करना है, और जो प्रोसेसेस होती हैं गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में उसको भी रिफॉर्म करना है, सो दैट पब्लिक सर्विस डिलीवरी बिकम मोर एंड मोर एफिशिएंट। सो ये मिशन कर्मयोगी का एम है इन ऑर्डर टू अचीव इट। ये मिशन कर्मयोगी ये जो चेंजेस है, रिफॉर्म है, इसको कैसे अचीव करता है, तो 3 ट्रांजिशनल मैकेनिज्म है इसमें, थ्री प्रॉन्ग्ड अप्रोच है इसकी। फर्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफिशियल की माइंडसेट को चेंज करना। गवर्नमेंट और ऑफिशियल शुड नॉट सी देमसेल्फ एज कर्मचारी, दे शुड सी देमसेल्फ एज कर्मयोगी। कर्मचारी नहीं, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने आप को एक नौकर की तरह नहीं देखना है जिसकी 9 to 5 ड्यूटी है, जिसके बाहर कुछ होता है तो दैट इज़ नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे शुड बी वर्क ऑब्सेस्ड, दे शुड बी वर्क वर्शिपर, कि हमारा वर्क ही हमारे लिए वर्शिप है। डिलीवरिंग सर्विस टू पब्लिक इज़ आवर सोल गेम by whatever means is possible as long as it do not violate any law or constitutional obligation. So to change the mindset of government official, time change हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सो गवर्नमेंट ऑफिशियल को अपने आप को एक चेंज करना होगा कि वो अपने आप को सिर्फ एक सर्वेंट की तरह ना देखे, वो अपने आप को एक डिलीवरर ऑफ पब्लिक सर्विस देखे, जो पब्लिक को एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए बेटर टू बेटर अपने आप को मैनेज करता है, अपने आप को एसेस करता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है। सेकंड जो एम है मिशन कर्मयोगी का, वो है चेंज इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में चेंज करना है। वर्क प्लेस में इस तरह चेंज करना है कि सिविल सर्वेंट जो है अपनी वर्क प्लेस में, कई बार ऐसा होता है कि सिविल सर्वेंट इज़ जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन डूइंग सम गुड पब्लिक सर्विस, बट ही इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी ऑनेस्टली एंड in a way which can change the society due to the constraints in the environment, in the workplace। जो financial human resources का constraint होता है उसके कारण he is unable to perform up to his कहना चाहिए up to his intent or up to his goodwill and up to his duty, and that should change according to mission कर्मयोगी, कि जहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है वर्क प्लेस में सिविल सर्वेंट के लिए उनको रेमीडिएट करके सॉल्व करना है, so that he performs up to his level। The third transition is public HR management system। जो human resources management system है उसको इस तरह से चेंज करना है कि वो रूल बेस्ड ना हो के रोल बेस्ड काम करे। रूल बेस्ड मतलब one who goes only by the rule even if it is not beneficial for the society or it is against the benefit, it is against the wider welfare of the society। and role based means एक जितने भी individuals हैं जो public service में involved हैं, they should behave in a way that suits their role, that basically shows कि that civil servant is inclined to work for public service even if it is outside the bound of his capacities। किसी ना किसी तरीके से मैनेज करके, किसी ना किसी तरीके से कोई वे या फिगर आउट करके, सॉल्यूशन फिगर आउट करके उस चीज़ को अचीव करता है। This is what is mission कर्मयोगी is meant for, and this is what is the role। The second part of our question was we have to discuss the role of the mission कर्मयोगी in reforming the bureaucracy। This is how mission कर्मयोगी aims to transform the role of the bureaucracy in civil servant in the society। Let's move on to conclusion। Conclusion में what we will write, conclusion में we will write कि all these changes, what are the changes, wider changes which are going in the society at micro level and both macro level। So what is the wider paradigm which is changing in our society। हमारी सोसाइटी में जो वाइड चेंज जो ग्रॉस लेवल पे आ रहा है वो ये आ रहा है कि इंडिया इज़ मूविंग टुवर्ड्स अ लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस अप्रोच। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स आर गेटिंग रिड्यूस और हमारी गवर्नमेंट का साइज रिड्यूस हो रहा है। लेस गवर्नमेंट का मतलब होता है कि हमारी जो ऑफिशियल प्रोसेसेस हैं उसमें गवर्नमेंट का मिनिमल इन्वॉल्वमेंट होता है। अ पर्सन शुड बी एबल टू गेट हिज सर्विस एज फास्ट एज पॉसिबल। ये गवर्नमेंट की एप्लीकेशन इस विंडो से उस विंडो घूमते नहीं रहना चाहिए, जितने जल्दी रिजॉल्व हो जाए उतने जल्दी रिजॉल्व हो जाना चाहिए। दिस इज़ नॉट मेंट बाय लेस गवर्नमेंट। तो
लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस के अप्रोच पे हम इंडिया जो है मूव कर रहा है. इट इज़ स्ट्राइविंग फॉर द लेस नंबर ऑफ ऑफिशियल प्रोसेसेस एंड मोर नंबर ऑफ आउटपुट, मोर अमाउंट ऑफ आउटपुट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल. एंड इसके लिए हमको एक पैराडिग्मेटिक शिफ्ट की नीड है. पैराडिग्मेटिक शिफ्ट मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव शिफ्ट की नीड है इन द मल्टीपल डोमेन्स. व्हाट आर दोज डोमेन्स? in the capacities, in the mindset of our public and civil servant, and especially the actions of our civil servant. इन सब में हमको एक चेंज की नीड है. हमारा सिविल सर्विस जो है एक पुराने ब्यूरोक्रेट, एक पुराने ओल्ड फैशन्ड ऑफिसर की तरह काम नहीं कर सकता. इफ़ ही wants to deliver the less government, more governance services based approach. So ये हमारी इंडिया की चेंजिंग नीड की आज की नीड है. टेक्नोलॉजी जो है ये रीडिफाइन कर रही है कि गुड्स एंड सर्विसेज कैसे रेंडर होती हैं. पहले किसी इंसान को अगर पैसे लेने होते थे, गवर्नमेंट से कैश लेना होता था वेलफेयर बेनिफिट का, तो उसको ऑफिस चक्कर लगाने होते थे. आज की डेट में डीबीटी, आधार, डिजी लॉकर, इन सब की हेल्प से डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है एंड ही कैन डायरेक्टली गो टेक आउट फ्रॉम द ATM. So technology is redefining how goods and services are delivered in the present time. CP ग्राम्स, माई गवर्नमेंट, दीज आर ऑल चैनल्स जहाँ पे पब्लिक रिड्रेस कंप्लेंट्स का रिड्रेसल हो सकता है. पब्लिक कैन गेट देयर कंप्लेंट्स रिड्रेस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट. फेसलेस ट्रांजेक्शन, ड्रोन डिलीवरीज, ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल यूनिवर्सिटी. इंडिया बेसिकली रैपिडली इंटीग्रेट कर रहा है सारे डोमेन में, सारे सेक्टर्स में, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारे डोमेन्स में इंडिया रैपिडली टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहा है for the betterment of deliveries and for the improved efficiency in delivering goods and services. So हमारा जो स्ट्रक्चर और सेटअप है वर्क प्लेस का वो रैपिडली ऑल्टर हो रहा है. एंड गुड, इन सब का मेन गोल क्या है? टू डिलीवर गुड गवर्नेंस टू ऑल सिटीजन्स. एंड ऑल दिस रिक्वायर, ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, ऑल दिस रिक्वायर अ सिविल सर्वेंट जो ना सिर्फ कमिटेड हो बट कम्पिटेंट भी हो to deliver on this evolving mandate, to deliver on the changes which is occurring, to deliver the changing demands and need of the public. So what is said in this last line is ethics के जो GS4 के syllabus में जो topic है attitude and aptitude, that is what is written in there in this last line. एक सिविल सर्वेंट जो है हमारी डेट में, आज की डेट में, वो बेसिकली ही शुड नॉट जस्ट बी कमिटेड, मतलब ही शुड नॉट जस्ट पजेस एन एटीट्यूड कि मुझे पब्लिक सर्विस करनी है, बट ही शुड ऑल्सो हैव एन एप्टीट्यूड, ही शुड ऑल्सो हैव कम्पिटेंस कि वो रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट जो है टेक्नोलॉजी का, सर्विस ऑफ पब्लिक सर्विस का, डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस का, गुड्स एंड सर्विसेज का, उन सब का जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें अपने आप को अडॉप्ट कर पाए फास्टली एंड उसमें डिलीवर कर पाए in order to provide public centric governance. This is what is said in the last line. So I hope this question is clear to you, how our governance framework is changing and how do we need a reformed civil servant which is able to provide efficient public service, and how Mission Karmi Yogi plays a role in this, how Mission Karmi Yogi plays an effective role in providing, in reforming this civil service in order to provide public service, public centered governance. So I hope this question and this concept is clear to you. Please again I request as per usual ki don't just watch the video, stop the video after you see the question in the starting, write the answer and then watch the video in order to assess what are your weak areas in the question, what didn't you know about the, what didn't you know and what wrong approach you were taking while writing the answer. Thank you very much for watching the video.